सो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. So inverse trigonometric function we have already discussed. Okay, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, all the things. So with the help of question, I start this topic. So let us suppose fx equal to cos inverse sin x, and we need to find the f dash x. So fx value is cos inverse sin x, and we need to find the value of f dash x. So student, before finding the derivative part, sin x need to convert in cos. So it will be cos pi by 2 minus x. But the criteria of x is not given. भाई x कहाँ से कहाँ तक है ये given नहीं है. तो अगर x कहाँ से कहाँ तक है वो given नहीं है तो हम उस पार्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पर cos है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे से हट जाते हैं, है ना. यहाँ से जो रिजल्ट बचता है वो आता है pi by 2 minus x. So when you find the derivative of this, so differentiate on both sides with respect to x. So pi by 2 is a constant, derivative is 0, minus 1. So answer is minus 1. Answer is minus 1. Come to the next question. Come to the next part. So question is y equal sin inverse 3x plus 2. So you need to find the value of dy by dx. So you need to find the value of dy by dx. So sin inverse 3x plus 2 डेरिवेटिव हमें चाहिए. स्टूडेंट्स हमें पता है कि फॉर्मूला होता है कि अगर हम sin इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम sin इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये डेरिवेटिव होता है इस रिजल्ट का. So students, sin inverse x derivative is 1 upon under root 1 minus x square. So definitely we don't have any issue to find the derivative of sin inverse 3x plus 2. Sin inverse 3x plus 2. So it will be 1 upon under root 1 minus. So here is x square, but here is 3x plus 2. So यहाँ पे आएगा 3x plus 2, 3x plus 2 square into, अब जो 3x plus 2 है उसका भी डेरिवेटिव होगा by chain rule. So यहाँ पे you can simplify this one. 1 minus, it will be 9x square plus 4, it is 12x. And here is 3x plus 2, here is 3. So answer is 3 upon under root 1 minus 9x square minus 4 minus 12x. So this will be 3 upon under root minus 3 minus 9x square minus 12x. So check the answer, students. चलिए स्टूडेंट्स, ये आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, if y equal sin inverse 2x upon 1 plus x square, so find the value of dy by dx. It is very clear कि अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसीलिए हम यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सो सी वेरी केयरफुली. हमें पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है. So ये बातें हमें माइंड में रखनी होगी. So put x equal to tan थीटा, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट आस्क मी कि सर
why we put x equal to tan theta? So my response is that if you have knowledge about the formula, so you can create any of the substitution. ठीक है, तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको अपने माइंड में रखना होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, इसीलिए मैं x इक्वल टू tan थीटा की तरफ अप्रोच किया है। सो आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मैं इस y की वैल्यू को चेक करूं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 plus tan square theta. So here is sin inverse, it is sin 2 theta. देखिए यहाँ पर अभी भी x की वैल्यू नहीं दी है। देखिए जब क्वेश्चन थोड़े टफ होने स्टार्ट होंगे तो आपको x की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर इसकी रेंज को डिसाइड करेंगे। अभी यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की कोई रेंज ही नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है कुछ नहीं दिया हुआ है। सो साइन इनवर्स, सो ये ओनली 2 थीटा बचेगा। अब थीटा कितना होगा, यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी tan इनवर्स x. You can apply here. So here is tan inverse x. Now take the derivative on both sides, divide by dx. So 2 is the constant, derivative of tan inverse x. So derivative of tan inverse x will be 1 upon 1 plus x square. ये भी एक फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले पे आप डिस्कस ऑलरेडी। सो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट y. y is cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। इन द अदर सेंस यू कैन से you need to find divide by dx. So students, it is very tough to calculate answer directly, so need to substitution here. So put x equal to tan theta. So if x equal to tan theta, so it is sure theta will be tan inverse x, and your question is converted. Your question is converted 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. So here is cos inverse, it is cos 2 theta. So we are getting the value cos inverse cos 2 theta. So cos inverse cos, okay, ये सिर्फ 2 theta रिलीज करेगा यहाँ से. So here is 2 theta is tan inverse x. Now we are getting the same answer 2, and tan inverse x derivative is 1 upon 1 plus x square. This is the answer. This one is the answer. So students, next question करते हैं। ये questions आपको clear है? I hope. Question number 5. So we have a function y tan inverse square root x is square root a divided by 1 minus under root ax. So need to find the dy by dx. dy by dx. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे tan इनवर्स x है। अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स है, अगर आप यहाँ पे tan क्रिएट कर पाते हैं, tan क्रिएट, tan इनवर्स यहाँ से हट जाएगा। सो tan को क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ उसको, आप लोग ध्यान सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस अंडर रूट ए एक्स, तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट ए। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं कि लेट ये जो रूट एक्स है आप इसको मान सकते हैं, भाई आप इसको मान सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम मानने में, इसको आप tan a मान लीजिए, और जो रूट ए है उसको आप tan b मान लीजिए। सो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। सो यहाँ पे बन जाएगा tan a। मैं सब क्यों कर रहा हूँ, मैं सब इसलिए कर रहा हूँ कि मैं tan का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर पाऊँ। मैं सिर्फ tan के फॉर्मूले को क्रिएट करने के लिए सब कर रहा हूँ। 1 माइनस tan a
10b. So you can write here 10a plus b. So a value you have already, and 10b value is root a constant. Students, I think it is very clear, it is transparent कि आप इस पूरे expression को you can put here 10 root x plus root a, and there is no criteria of x, so tan inverse 10. Okay, ये यहाँ से हट जाएगा, so only the rest part is root x plus root a. So take the derivative on both sides. Root x plus root a. So derivative of root x and derivative of root a. So derivative of root x will be 1 upon 2 root x, and this is 0. So students, the answer is 1 upon 2 square root of x. Okay, so I think in this question there is no doubt. Now come to the question number 6. Question number 6. So we have a function y. Here is cos inverse square root 1 plus cos x by 2. So need to find the derivative of this function. So find dy by dx. Find dy by dx. चलिए देखिए, डिवाइड बाय dx को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करने के लिए cos इनवर्स है और 1 प्लस यहाँ पे लिखा है cos x, इसको लिखिए 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1. So divide by 2 cos इनवर्स. So 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना. 1 से 1 कैंसिल आउट होगा और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा. So rest part is cos स्क्वायर x. देखिए स्टूडेंट्स, रूल्स तो ये कहता है कि जब आप स्क्वायर रूट के अंदर से कोई स्क्वायर निकालते हैं तो मॉड में आता है. भाई रूल तो ये बोलता है ये मॉड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसने दिया नहीं है कि x कहाँ से कहाँ तक है, कौन कहाँ है, इसीलिए हम इस टेंशन को ना लेके, हम इसको मॉड को ना लेके हम सिंपल इसको cos x by 2 मान लेते हैं. बट इन द एडवांस प्रॉब्लम्स मे बी x given, so I will solve this type of questions, no issue. It is only x by 2, so take the derivative on both sides, and 1 by 2 is the constant and derivative of x only, that is 1. So answer is 1 by 2. So I hope you understand the solution part. Come to the next. चलिए find the next question. Question is that कि हमारे पास एक y given है और y equal to दिया हुआ है sin inverse. Here is 2x. Here is 2x under root 1 minus x square. Okay, so x value is minus 1 upon root 2 x 1 upon root 2. So find dy by dx. Find dy by dx. देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने कुछ लेक्चर्स पहले, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 2 साइन इनवर्स x होता है. ये हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है ना. अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. सो डिवाइड बाय dx इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये इसका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का. लेकिन अगर एग्जाम में कोई बच्चे भूल जाएं एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि कैसे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, सो वहां पे भी ट्रिक है कि देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है x को tan थीटा रखते हो. जब भी 1 माइनस मिलता है तो आइदर यू पुट x इक्वल टू sin थीटा और पुट x इक्वल टू cos थीटा. इट्स अप टू यू. सो आई पुट x इक्वल टू sin थीटा, पुट x इक्वल टू sin थीटा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको मैं यूज करूंगा अभी आगे. सो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा
under root 1 minus sin square theta. So it will be sin inverse 2 sin theta 1 minus cos 1 minus sin square cos square, and cos square is mod cos theta. So I can write here as cos theta. So here is y equal to sin inverse sin 2 theta. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, तो मैं साइन इनवर्स से साइन को हटाने से पहले अब मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि इस बार आपको x गिवन है। सो आपको देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में जो 2 थीटा आ रहा है वो साइन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। भाई आप लोगों ने पढ़ा है ना कि देखो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा कब लिखते हैं? जब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स की रेंज में होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अगर नहीं होती है तो पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर इसको हम इसको आगे लिखते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए जो वैल्यू दी है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको डील करूंगा क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है? गिवन है x की वैल्यू -1/√2 से 1/2, और x क्या है? x क्या है? x को आपने sin थीटा माना है, -1/√2 से 1/√2, तो थीटा क्या हो जाएगा? जब साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा तो -π/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/4। हमें चाहिए लेकिन 2 थीटा। ओ सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कहाँ पे लगा दिया, ये ऐसे हो। सो हमें चाहिए 2 थीटा। तो 2 थीटा कितना होगा बच्चों? 2 की मल्टीप्लाई करा तो -π/2 से π/2 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन से, इस कंडीशन से हमें ये फाइंड आउट हुआ कि 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आती है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 2 थीटा लिखता हूँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को, तो 2 थीटा जो है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए, और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज यही तो होती है -π/2 से π/2। यस, तो उसकी रेंज में आ रहा है, तो फिर टेंशन क्या है भाई? जिस रेंज में हमें चाहिए था मिल गया हमें उस रेंज में। तो y की वैल्यू मिल गई आपको 2 थीटा, और 2 थीटा, थीटा आप कहां से फाइंड आउट करेंगे? यहां से फाइंड आउट करेंगे थीटा, यहां से आएगा साइन इनवर्स x। सो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय dx, 2 कांस्टेंट sin इनवर्स 1/1 minus x square। स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, एंड आई होप यू एंजॉय द सॉल्यूशन। Okay, so students, I hope you understand the solution part of this. So come to the next question. So today 8th question. So now the question is, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल cos इनवर्स एंड sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डिवाइड बाय √2। So here is -π/4 x or π/4. Okay students, so first I will solve the question, then at the last I will ask, if someone doubt you can ask me. Okay, so x is between -π/4 to π/4. So यहाँ पर देखिए हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो cos इनवर्स के आगे जो लिखा है it is very complicated, so need to simplify this. So जैसे कि हर एक ताले की चाबी अलग होती है, तो हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से अप्रोच करना होता है, और वो क्वेश्चन हमें खुद बताया था कि कैसी अप्रोच लगेगी इसमें। देखिए 1/√2 से डिवाइड कर दिया दोनों को। अब देखिए क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, बाहर कौन है? कॉस इनवर्स। बाहर कॉस इनवर्स है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अंदर भी क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए, बिकॉज इफ इन द आउटसाइड कॉस इनवर्स, सो वी नीड टू फाइंड कॉस इनसाइड, बिकॉज कॉस एंड कॉस इनवर्स, ठीक है ना, उसके बाद फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो आंसर होगा। सो यहाँ पे मुझे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, जब बीच में प्लस होता है तो ये फॉर्मूला होता है cos a minus b। सो cos a minus b cos a plus b प्लस sin a sin b, sin a sin b। So cos a minus b will be cos a cos b plus sin a sin b। तो यहाँ पे sin है, इसके बराबर में भी sin चाहिए, तो 1/√2 को लिखो sin की फॉर्म में, तो वो होता है sin π/4।
इंटू साइन एक्स। अब फॉर्मूले के लिए कॉस है ना, इसके बराबर में कॉस होना चाहिए, इसको लिखो कॉस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 सेम ही होते हैं। सो यहाँ से हमें मिला कॉस इनवर्स, और फॉर्मूला बन गया ये कॉस ए माइनस बी का, तो आप एक्स माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर इस कॉस से कॉस इनवर्स को हटाने के लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो उसकी रेंज में आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है एक्स माइनस पाई बाई 4, इसको हटाने से पहले चेक करना पड़ेगा कि एक्स माइनस पाई बाई 4 कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से पाई, उसके बीच में आता है या नहीं आता है। उसकी रेंज होती है 0 से पाई, इसके बीच में होना चाहिए। देखिए जो गिवन है ना उसे चेक करेंगे। गिवन क्या है, एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब आपको चाहिए एक्स माइनस पाई बाई 4, दोनों तरफ एक्स माइनस पाई बाई 4 कर दो, दोनों तरफ, ठीक है ना। जब आप दोनों तरफ माइनस पाई बाई 4 करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, दैट इज माइनस पाई बाई 2, और ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये गिवन है, ये मैंने नहीं की, गिवन है। सो मुझे ये चाहिए एक्स माइनस पाई बाई 4, सो मैंने दोनों तरफ माइनस पाई बाई 4 लगा दिया, सो ये 0 हो गया और ये आ रहा है। तो एक्स माइनस पाई 4 की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में, लेकिन हमें चाहिए इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं, हम बिना किसी टेंशन को लिए हम यहाँ से एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को इतना कंफ्यूज ना करके अगर मैं इसको पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखता तो ये जरूरी ना पड़ती भाई। यहाँ पे मैं लिखूं पाई बाई 4 माइनस एक्स, अभी तो वही बात है, चेक कर लो, कॉस है कॉस भी ये रहा है ना, प्लस साइन है साइन भी, अभी वही बात है। तो अगर आप अब इसको चेक करें, अगर आप पाई बाई 4 माइनस एक्स को चेक करें तो ये डेफिनेटली उसी के रेंज में आएगा। मैं चेक कराया था, ठीक है, यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 4 और ये हो गया पाई बाई 4, दोनों तरफ पाई बाई 4 ऐड कर दो। जब पाई 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इस पर यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। बच्चों ये देखिए आप कि पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, और 0 से पाई के बीच में ही आता है 0 से पाई बाई 2। समझिए कहानी को, 0 से पाई के बीच में ही आता है 0 से पाई बाई 2। तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट आ रहा है 0 से पाई बाई 2 वो उसके अंदर ही आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब उसी की रेंज में आ रहा है। तो आप इसको हटा सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं। सो डिवाइड बाई डी एक्स इज पाई बाई 4 इज कॉन्स्टेंट एंड इज -1, so -1 will be the answer, and I hope you understand the solution. Students, I hope you understand the solution part. Come to the next part of, okay. So question number 9. So y equal to tan inverse under root, यार बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना, वो शोर मचा रहे हैं, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 एंड डिवाइड बाय ए एक्स। सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो देखिए ध्यान सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना अपने लाइफ में, जब भी आपको मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन मिले जिसमें 1 माइनस हो, तो हमेशा x को आपको या तो साइन थीटा रख दो या फिर रख दो आप इसको कॉस थीटा। जब भी आपको मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमेशा या तो इसको रख दो टेन थीटा या फिर इसको रख दो कॉट थीटा। और जब भी आपको मिले एक्स स्क्वायर -1, तो या तो इसको रख दो सेक थीटा और या फिर इसको रख दो कॉसेक थीटा। ये रूल होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर रखोगे तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर रखोगे तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, और सेक स्क्वायर -1 रखोगे तो टेन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी हैबिट होती है, हम इसको ऑप्ट करते हैं, हम ये रखते हैं और ये पुट करते हैं और ये वाला पुट करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ इस पार्ट को। देखिए मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। देखिए इसको मैं लिख सकते हैं 1 प्लस ax का होल स्क्वायर। तो जिसका भी होल स्क्वायर होता है उसको मानते हैं आप टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे आप ax को मानेंगे टेन थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि लास्ट में निकालना पड़ेगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी tan इनवर्स ax। थीटा आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ax आ जाएगा, जिसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। चलिए
तो आइए अपने क्वेश्चन पे आइए। y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस 1, और बच्चों ये हो गया टेन थीटा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले करता हूँ। क्वेश्चन को टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। बच्चों अब यहाँ से आप लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आएगा ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। तो फाइनली आपको पता है कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 2 कट जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको टेन थीटा बाई 2। चेक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 करके थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देना, अप्लाई कर देना, एंड यू विल गेट द डेरिवेटिव, and it is a solution of that question. Okay, so I hope you understand the solution. See you with the next video.